Hello, students. How was your yesterday's task? Is it easy or any confusion or any query of yesterday's class tasks? Can you hear my voice? Okay, okay, yes. And are you done the all the tasks of yesterday's class? Any query in downloading the Visual Studio Code or in the program code, right? Yes. Any query? Or all of you have done the both task? Okay, Kunj Detroja, yes. Said yes. Preet Agrawal says yes, yes. Very good. Okay, so there is a error in this Visual Studio, right? Let's do this task for remaining students, those who can't solve this problem via simple system.out.println statement. Let's do this task live. 1 second. Can you see the screen? Okay. Let's start the current task. 1 second. So first of all, we have to write the class name, and I suggest all of you that class name should be the who class name should be the who the class name should be which you have stored the file on which name. The our name is task.java, then class name should be also task, right? Next, public static void main string and argument, right? And now we have to simply write the public static void statement. Yes. Okay. Now system. We have to write for all stars uh, for this one, second statement, third statement, and this is fourth statement, right? ओके, तो अभी हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक किया, तो उसके बाद फिर से हमें लिखना पड़ेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, राइट? So we will write here
double star, right? And then copy these two statements is also good because this is going to very lengthy code, right? Now we have to check for this thing. Is the code is completely running or not? Okay, and now we can all see that here our code is absolutely running good, and also the our desired output we will get this 4 lines of stars increasing one by one. Okay, now you all think that why we have to write if we have to print the bigger any particular pattern, then we have to write all lines by system.out.println. No, here अभी क्या कर रहे हैं हम पहले से सब सीख रहे हैं, जो स्टूडेंट्स को पहले से नहीं आता इसके लिए हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, राइट? बाद में हम फोर लूप से, वाइल लूप से, और आगे आगे धीरे धीरे हम अलग अलग डू वाइल लूप ऐसे लूप यूज करके हम क्या करेंगे, एक ही लाइन को ऐसे लिखेंगे, मतलब एक ही स्टेटमेंट को ऐसे लिखेंगे जिससे कंप्यूटर समझ जाए कि यस दे वांट टू प्रिंट दैट, and then computer will be printing our as per our pattern code, right? Now all of you think that why we need these semicolons or something like that. Let's check without semicolon what error sees. Okay, तो अभी हम देखते हैं कि सेमिकोलन के बिना हमें यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि जैसे लेट्स रन द कोड. Okay. Now syntax error. Insert semicolon to complete block statement. Java. अभी यहाँ पे लाइन भी दिखा रहा है, देखो ध्यान से, आपको सबको देखना है कि लाइन कौन सी है. वो तो लाइन नंबर 4 पे यहाँ पे सेमीकोलन नहीं हुआ है, राइट? तो वी हैव टू डू सेमीकोलन हियर. सो वन सेकेंड. Also, if we try to error in the public static void statement, let's try to uh, statics as to capital और try to run this. Okay. तो अभी यहाँ पे क्या दिखा रहा है? On line 2 syntax error token static expected in Java. तो अभी देखो यहाँ पे क्या है कि सब एरर भी एकदम फटाक से हमें इजीली सॉल्व कर सके, इसके लिए यहाँ पे एक लाइन भी आ जाती है कि आप कैसे उसको सॉल्व कर सकते हो जो एरर आ रही है, राइट? तो अभी हमें क्या करना होगा कि उसको रिमूव करना होगा, राइट? वन सेकेंड. और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, एस कर देंगे, राइट? तो अभी देखो कि यहाँ पे मैं जैसे ही इधर एस से कैपिटल एस करूं करता हूं यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे रेड लाइट जनरेट होती है, रेड अंडरलाइन जनरेट होती है, राइट? कैन यू सी दैट ऑल ऑफ अस? तो ये जो रेड लाइट है वो क्या करती है, यहाँ रेड सॉरी अंडरलाइन है, वो वो हमें बताती है विदाउट डिबगिंग और रनिंग अवर जावा कोड, राइट? वो हमें बताती है कि हमें यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई है, हमें यहाँ पे कुछ एरर को सॉल्व करना है, राइट? तो इसको क्या बोलेंगे, जो लाइन बाय लाइन कोड को कंपाइल कर रहा है और उसको मतलब उसको चेक कर रहा है, उसको बोलेंगे इंटरप्रेटर, राइट? और अगर कोई पूरे कोड को एक साथ कंपाइल कर रहा है उसको हम बोलेंगे कंपाइलर. ओके, तो नाउ ऑल ऑफ यू आर थिंकिंग दैट द जावा यूजिंग कंपाइलर और इंटरप्रेटर. कैन यू guys say that java language using compiler or interpreter to solve this? Any idea about is java using compiler or is java using interpreter? I'm waiting for the answers. Okay, one good answer. Dhruvil says very good.
Both. Okay. Now why both? Dhruil, can you explain yourself? The answer is correct and very good answer. The Java uses both, right? Should I unmute you? Okay, not a. Okay, Java C convert code to bytecode. Yes, using compiling. Then after it interpreted. Yes, absolute answer from Dhruvil. So first, Java compiler always compiles the code in compiler and converts it into bytecode like machine code or something that is robust and secure than other language. And then the interpreter will compile the code, the bytecode, as per your system requirement or device requirement. Like I have a HP laptop, it means I have a Windows laptop, then it will interpret like that. If I have a Linux or Mac laptop, then they will interpret like our system requirement. Okay. So first we write the Java program, and then जब हम इसको इंटरप्रेट मतलब कंपाइल करने रन करने भेजेंगे तब उसका क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल they will compile the code by compiler and convert into bytecode. Dot class file will generate, and then the interpreter comes in the picture, and the interpreter will interpret means compile the code and then gives the our output as per our system requirement. Okay. Now you think many non-technical person also in our Zoom meeting. So something they will think what is compiler and what is interpreter? What is the difference between both of them, right? So first of all, the compiler compiles the code, whole code in one uh, लाइक जो पूरा कोड होता है उसको कंपाइलर क्या करेगा? एक साथ एक ही बार में वो कवर करेगा और उसको कंपाइल करेगा। और जितनी भी एरर्स है, मान लो कि यहाँ पे मेरी एक वन एरर यहाँ पे है, लाइक मैं यहाँ पे एक सेमीकोलन हटा देता हूँ और यहाँ पे एक दूसरा सेमीकोलन हटा देता हूँ, तो क्या करेगा कि जो कंपाइलर है वो मुझे दोनों ही, अगर सिर्फ कंपाइलर वर्क करता है उसकी बात करो, अभी इंटरप्रेटर को याद मत करो, पहले हम देखते हैं सिर्फ कंपाइलर। ओके। तो कंपाइलर क्या करेगा? जब हम उसे रन करेंगे और डिबग करने के लिए भेजेंगे ये कोड को, तो वो मुझे लिख के देगा कि भाई आपके जो फोर्थ नंबर की लाइन है उसमें सिंटेक्स एरर है, आपको लाइन पूरी करनी है, कमांड पूरा करना है, उसको सेमीकोलन करना पड़ेगा। सेम एरर वो उसके लिए पीस के लिए भी बताएगा, सेवंथ लाइन पे भी सेम प्रॉब्लम है, आपको उसको सेमीकोलन करके उसको आपको कंप्लीट करना है। ओके। एंड अभी आपको लगेगा कि चलो ओके, कंपाइलर क्या करता है कि वो पूरे कोड को एक साथ कंपाइल करता है, राइट? एंड जो भी एरर्स है उसको क्या करेगा? वो एक साथ डिस्प्ले करेगा कि यस ये लाइन पे एरर है, ये एरर है, ये एरर, जितने भी एरर है एक साथ वो आपको दिखाएगा। इंटरप्रेटर क्या करेगा? इंटरप्रेटर विल कंपाइल जावा कोड और समथिंग एल्स कोड one by one, right? Then first of all, they will check this line. Then if there is no error, then बाद में ये लाइन में जाएगा और धीरे धीरे करके ये लाइन में जाएगा, राइट? तो पूरा एक लाइन बाय लाइन चेक करता है, पहले ये एक लाइन, बाद में दूसरा, सेकंड, फोर्थ, थर्ड, फोर्थ, ऐसे, राइट? अगर मेरा एरर है सेवंथ लाइन में एंड फोर्थ लाइन में, देन इंटरप्रेटर क्या करेगा? पहले मुझे बताएगा कि भाई आपका जो प्रोग्राम और कोड है उसमें फोर्थ लाइन पे एरर। जैसे ही मैं सॉल्व करूंगा उसके उसको, उसके बाद क्या होगा कि फिफ्थ लाइन चेक करेगा, सिक्स लाइन चेक करेगा,
और उसके बाद जब वो 7th लाइन पे आएगा तब फिर से बोलेगा भाई आपके जो कोड है उसमें एरर आ गया है, राइट? तो दिस इज मेजर डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। ओके, ऑब्वियस है कि जो इंटरप्रेटर है वो फास्ट होगा क्योंकि उसको पर्टिकुलर वन वन लाइन ही उसको कवर करना है, कंपाइल करना है, राइट? और अगर कोई एरर है तो आपको बताना है, राइट? है ना? और साथ में दूसरा जो कंपाइलर है वो थोड़ा स्लो होगा क्योंकि उसका जो वॉल प्रोसेस है एक साथ में करना है, एक ही इटरेशन में खत्म करना है, तो उसको क्या होगा, थोड़ा टाइम लगेगा। पर अगर हम ओवरऑल प्रोसेस देखेंगे, ये लाइन बाय लाइन का प्रोसेस हुआ था, उसमें कंपाइलर स्लो है, इंटरप्रेटर फास्ट है। एंड अगर हम लाइन बाय लाइन का देखते तो, पर अगर पूरे कोड का देखते तो कंपाइलर इज फास्टर देन इंटरप्रेटर, अगर पूरे कोड का बात करते। क्योंकि क्या होगा कि एक एक एरर दिखाएगा तो उसमें आपको सॉल्व करने में देर होगा, एक करो बाद में फिर से कंपाइल होगा, फिर से दूसरा करो बाद में तीसरा एरर आएगा। पर कंपाइलर क्या करेगा, एक साथ तीनों तीन आपको अगर है तो वो दिखा देगा। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइस? एनी क्वेश्चन? आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, Suyog says yes. Very good. Dhruvil also says yes. अभी कल जब मैंने विजुअल स्टूडियो डाउनलोड करने के लिए आपको बोला था, राइट? तब क्या हुआ था कि आपको मैंने एक बोला था कि आपको गूगल में जाना है, यहाँ पे आपको क्या करना है कि वीएस कोड जावा किट पैकेज के लिए सर्च करना है, राइट? और एक पैकेज आपको डाउनलोड करना है। तो आपको हुआ होगा कि ये सर ने क्या बोला है कि ये पैकेज क्यों डाउनलोड करना है, क्योंकि काफी सारे दूसरे लैंग्वेज डायरेक्ट वीएस कोड पे अवेलेबल है। सो हमें एक्स्ट्रा पैकेज करने को, डाउनलोड करने को क्यों बोला, राइट? तो उसका एक रीजन है, जावा वर्क्स ऑन जेवीएम एंड जेडीके। नाउ यू थिंक व्हाट इज जेडीके? जेडीके इज जावा डेवलपमेंट किट। अभी जेडीके क्या है कि जावा को रन करवाने के लिए जितने भी एलिमेंट्स और एनी अदर रिसोर्सेज चाहिए वो उसके अंदर होते हैं, जावा डेवलपमेंट किट के अंदर, राइट? It is compulsory to download this Java development kit before you run any Java code. With उसके विदाउट होगा ही नहीं, मतलब जावा डेवलपमेंट किट के बिना होगा ही नहीं। तो वो जावा डेवलपमेंट किट क्या क्या अपने अंदर रखता है, तो उससे हमें जावा के प्रोग्राम्स रन करने के लिए काम आते हैं। तो पहला तो हम देखते हैं कि वो जो कंपाइलर है वो उसमें होगा, यस। कंपाइल करने के लिए जो भी हमें एलिमेंट्स चाहिए वो सब जावा डेवलपमेंट किट के अंदर होगा। साथ में हम देखेंगे जेवीएम, और साथ में अदर एलिमेंट्स जो हमें प्रोग्राम रन करने के लिए चाहिए वो सब जावा डेवलपमेंट किट के अंदर होगा। तो एक ही किट डाउनलोड करने से आपका क्या होगा कि ये जब मैंने बोला था कि ये आपको डाउनलोड करना है पैकेज, राइट? तो उसमें क्या होगा कि वो आप डाउनलोड जैसे ही करोगे उससे क्या हो जाएगा कि हमारा जो जावा कोड है वो रन होने के लिए रेडी हो जाएगा। समझे? उसके पहले क्या होगा कि वो रन नहीं कर पाएगा। जैसे देखो, वन प्रॉब्लम इज अकरिंग नाउ बिकॉज आई अनइंस्टॉल्ड यू द जेडीके फ्रॉम माय लैपटॉप। सो बिकॉज क्या करना था मुझे कि विजुअल स्टूडियो के लिए मुझे जेडीके यूज करना था। सो मैंने जो मेरा लैपटॉप में था जेडीके, उसको आपको एक एरर दिखाने के लिए अनइंस्टॉल किया। अभी देखो, नेटबीन्स जो है वो ज्यादातर कंपनीज में यूज होता है जावा प्रोग्राम्स के लिए, राइट? अगर मैं जैसे ही उस पे ऊपर क्लिक करूंगा तो जैसे मेरे लैपटॉप में अभी मान लो कि जेडीके नहीं है, तो क्या शो कर रहा है, cannot locate Java installation in specified JDK home. Do you want to try to use default version? If I click on yes, one second.
कैन नॉट फाइंड जावा 1.8 और हायर, राइट? So you all understand this because of without JDK we cannot run the Java program, right? Okay. Now अभी 1 सेकेंड, अभी हम क्या करेंगे कि पूरा जो स्ट्रक्चर है कि जावा प्रोग्राम कैसे वर्क हो रहा है, वो क्लास क्या है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन क्या है, ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन क्यों लिखना पड़ता है, क्योंकि अगर आप पाइथन से, पाइथन प्रोग्रामिंग से रिलेटेड बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि पाइथन में तो सिर्फ आपको प्रिंट लिखना है, जो आपको प्रिंट करवाना सिंपल, आपको कुछ नहीं लिखना है। पर जावा प्रोग्राम क्या है कि थोड़ा डिसिप्लिन में रहता है, थोड़ा डिसिप्लिन वाला होता है, और साथ में एक पर्टिकुलर इमेज आपका जो है वो उसमें दिख सकता है कि जावा प्रोग्राम्स आर very often many people says that the Java programs are lengthy and hard to write because there are many class methods and other functionalities to run this particular course. But जावा क्या करता है मित्रों कि अभी अगर हमें कोई अच्छा बैकग्राउंड बनाना है या फिर अच्छा कोई फंडामेंटल से स्टार्ट करना है आपके कंपनी के लिए या जॉब के लिए, देन जावा इज द बेस्ट। बट इफ आपको कोई डेटा साइंस में जाना है, डेटा एनालिसिस में जाना है, देन पाइथन हैज मोर लाइब्रेरीज, इनबिल्ट लाइब्रेरीज दैट जावा डजंट हैव, राइट? बिकॉज अभी क्या है कि अभी हमें जावा में लंबा कोड लिखना पड़ेगा, पर उससे क्या होगा कि जो हमारा कोडिंग स्टाइल है वो इम्प्रूव होगा, उसके बहुत सारे बेनिफिट्स है कोड लिखने के, कि जैसे हमारा मेंटली एप्टीट्यूड जो है वो भी उससे इंक्रीज होगा, और वो सब यहाँ पे बहुत अच्छा है। पर क्या होगा कि अगर आप ऑलरेडी वो सबसे लेवल 1 पार कर चुके, मतलब आपका एप्टीट्यूड इज वेरी गुड, लॉजिकल थिंकिंग इज वेरी गुड, देन यू कैन यूज पाइथन। एंड देन पाइथन में क्या होगा कि उसमें एक बिल्ट इन लाइब्रेरीज बहुत है, कि ऑलरेडी जो लाइब्रेरीज डिफाइन करी हुई है उसको आप यूज करके कर सकते। पर अभी आप बिगिनर है और साथ में स्टूडेंट है, तो आपको क्या करना है कि अभी आपको वो एनवायरनमेंट के लिए प्रिपेयर होना है। उसके लिए हमें कोड लिखने पड़ेंगे, हमारा लॉजिकल थिंकिंग बढ़ाना पड़ेगा। तो इसके लिए अगर हमें सॉर्टिंग करना है जावा में, मतलब हमें क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है किसी नंबर्स को, तो हमें पूरा एक कोड लिखना पड़ेगा कि भाई ये जो अगर मिनिमम है तो पहले आएगा, मैक्सिमम है तो पीछे जाएगा ये नंबर। बट पाइथन में क्या होगा कि सिंपल आपको एक सॉर्ट वाला जो फंक्शन है और मेथड है उसको आपको इंपोर्ट कराना है, और सिंपली आप इजीली विदाउट एन लॉन्ग कोड, सिंपल इन 2-3 लाइंस यू कैन सॉर्ट द एलिमेंट्स एज यू कैन, राइट? बराबर। तो इसीलिए थोड़ा जावा लेंथी रहता है, पर आपको धीरे धीरे जैसे आप उसको ट्राई करते जाओगे आपके लिए वो अच्छा बनता जाएगा, बराबर। अभी देखते हैं कि नोटपैड में अगर आप जावा, बहुत सारे लोग अभी भी हमारे जो क्लास में है वो नोटपैड में जावा यूज कर रहे हैं, राइट? तो अगर आप नोटपैड में जो फाइल का नेम रखते हो वही क्लास का नेम रखो, और उसके बाद में जब आपको रन करना है प्रोग्राम, तो देन यू कैन गो इन दिस 1 सेकेंड, आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। सिंपली राइट हियर कमांड प्रॉम्प्ट एंड गो टू योर फाइल डेस्टिनेशन। फर्स्ट यहाँ पे आपको फाइल डेस्टिनेशन जहाँ पे, वहां पे आपको जाना है कमांड प्रॉम्प्ट में, और उसके बाद में जैसे ही आपको पहले कंपाइल करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो वो क्या फैसिलिटीज विजुअल स्टूडियो में यहाँ पे दिखा रहा है, पर अभी अगर आप नोटपैड में कर रहे हैं तो वो सब फैसिलिटीज आपको नहीं मिलेगी। तो आपको क्या लिखना होगा कि जावा सी, कंपाइल करने के लिए पहले जावा सी लिखना पड़ेगा यहाँ पे, जावा सी। और उसके बाद में अगर हमारा फाइल का नेम है मेन डॉट जावा भी लिखना पड़ेगा यहाँ पे पूरा, राइट? उसके बाद में आपको एंटर देना है। अभी मेरे पास यहाँ पे कोई कोड नहीं है तो एरर दिखेगा, पर आपको ये सॉल्व करना है, राइट? और उसके बाद में जैसे ही कंपाइल हो जाए आपको क्या करना है कि अभी आपको एग्जीक्यूट करना है कोड, तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा जावा स्पेस एक छोड़ के आपको लिखना है कि मेन,
ओनली। जैसे यहाँ पे जावा मेन, अभी मेरे पास अभी नोटपैड में मैंने कोई स्टोर नहीं किया है, तो अभी कोई रन नहीं होगा, पर ऐसे आप कर सकते हैं, राइट, अगर नोटपैड में भी आप यूज कर रहे हो तो। ओके, नाउ एनी अदर डाउट्स ऑन दिस, why Java code or something like that, why use this Visual Studio or something like that? अभी जो एक क्वेश्चन था वो सॉल्व कर दिया कि नोटपैड में कैसे सॉल्व करना है, राइट। और साथ में इसमें, वन सेकेंड, हाँ, अभी हम क्या करेंगे कि थियरी हमने बहुत सारी कवर कर ली है, तो अब हम थोड़ा कोडिंग सेक्शन में जाएंगे कि जैसे उसका डेटा टाइप क्या यूज होता है जावा में, और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या है, अदर ऑपरेटर्स कौन कौन से है, लूप कैसे यहाँ पे चलाते हैं जावा कोड में, राइट। तो वो सब हम देखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। अभी हम क्या करेंगे, 3 to 4 मिनट्स का जो अभी टाइम दिखा रहा है उसमें हम यहाँ पे मीटिंग एंड करेंगे, और उसके बाद में 5 मिनट्स के बाद में हम रिज्वाइन करेंगे यही जूम मीटिंग के लिंक में। और अभी हम लाइव में मैं भी यहाँ पे कोड करूंगा, उसके बाद में एक दो उसके जैसे कोड में आपको दूंगा, आपको सॉल्व करना है। अगर कोई क्वेश्चन है तो हम यहाँ पे मिलकर सॉल्व करेंगे वो सब कोड को, राइट। ओके गाइस, बहुत थियरी बहुत हो गई है, तो अभी हम क्या करेंगे, कोडिंग सेक्शन में जाएंगे, और जैसे ही मुझे लगेगा कि ये थियरी मुझे उसके साथ समझानी है, जैसे अभी मेरे को समझाना है कि ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन क्या है, वो जैसे ही हम कोड लिखेंगे उसके साथ मैं आपको समझाता जाऊंगा। ओके, नाउ हम 3-4 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। 10:40 को फिर से हम मिलेंगे, ओके। और यही जूम मीटिंग के लिंक में मैं होप करता हूँ सब आप रिजॉइन कर लोगे, ओके। नाउ मैं ये मीटिंग को एंड कर रहा हूँ और फिर से हम ज्वाइन करेंगे, ओके, आफ्टर 5 मिनट्स राइट नाउ, ओके। ओके, तो अभी जो मेन प्रॉब्लम सभी को है कि अभी ये क्या है, पब्लिक क्यों लिखता है, क्लास क्यों लिखता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन क्या है, वो हम पहले देखेंगे और उसको समझेंगे कि वो क्या है, और उसके डिप में जाएंगे। ओके, वन सेकेंड। देखो, तो पहले क्लास का तो एग्जांपल हम सभी को पता है कि क्लास क्या है, कि इंस्टेंस ऑफ मीन्स द ब्लूप्रिंट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स और समथिंग लाइक, जैसे हम पूरे अभी घर या ऐसा कुछ प्रोजेक्ट बना रहे तो उसका जैसा ब्लूप्रिंट कैसे बोलते हैं, तो ब्लूप्रिंट है वो हमारा प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट क्या है, क्लास में हम सब डिफाइन करते हैं। ओके, ये जो एक क्लास का नेम लिखेंगे, जैसे क्लास के नेम में क्या क्या लिख सकते हैं, कि जैसे क्लास नेम भी लिख सकते हैं। और मैं प्रिफर क्या करता हूँ कि जिससे ये सेव होता है उसका ही नाम यहाँ पे लिखो। क्यों लिखना है उसका भी एक रीजन है, बिकॉज जब मैंने बताया कि नोटपैड में जब आप जावा कोड रन करते हो और उसको जब आप कमांड प्रॉम्प्ट में जाके अभी आप जैसे रन करवाने का ट्राई करते हो, तब क्या होगा कि उसमें अगर आपने कंपाइलर में डाला द जावा सी सैंपल डॉट जावा, और यहाँ पे मान लो कि मैंने यहाँ पे नाम रिमूव करके यहाँ पे क्या कर दिया कि मेन, राइट, और मेन नहीं लिखना है, क्या लिखेंगे, ABC। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, नेम चेंज कर दिया है अभी। तो देखो जैसे क्यों एरर दिखा रहा है वो उसको मैं आपको समझाऊंगा, कि उसको इसीलिए एरर दिखा रहा है कि उसको मेरे को क्या करना पड़ेगा फिर से, जब उसको एग्जीक्यूट करना है तब मैंने क्या बोला था कि ओनली जावा लिखना है और क्लास का नेम लिखना है, तो आपको तब ABC फिर से लिखना पड़ेगा। पहले आपको क्या करना होगा, कंपाइल करने के लिए जावा सी सैंपल डॉट जावा लिखना पड़ेगा, तब ये पूरा फाइल कंपाइल होगा। और जब आपको एग्जीक्यूट करना है, मीन्स जो बाइट कोड जनरेट हुआ है उसको आपको इंटरप्रेट करके आपके सिस्टम के हिसाब से प्रिंट करवाना है और उसको एग्जीक्यूट करवाना है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, जावा ABC लिखना पड़ेगा। तो 2 बार अलग अलग मेहनत करना पड़ेगा। तो काफी सारे एडिटर अभी क्या करते हैं कि अभी वो पहले से ही बोल देते हैं कि भाई आप दोनों नेम सेम रखो,
तो क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर, क्योंकि दोनों बार पहले सैंपल डॉट जावा लिखो उसके बाद एबीसी लिखो तो थोड़ा तकलीफ हो सकता है, कभी कभी उसमें गलती भी हो सकता है। तो अभी क्या करना है कि जो हमारा नेम है फाइल का, वही नाम हम क्लास के नेम में लिखेंगे। ओके, अभी आपको होगा कि ये पब्लिक क्या है, ये एक एक्सेस मॉडिफायर है कि पब्लिक मतलब अभी यहाँ पे अगर हम प्राइवेट लिख देते तो वो जो है उसको कोई यूज, मतलब अगर हमने क्लास को किसी दूसरे कोड से रेफरेंस किया है, दूसरे कोई पेज से, मान लो यहाँ पे बहुत सारे टास्क ऑलरेडी हुए हैं, ये नंबर 1 नंबर 2 यहाँ पे नंबर 3 और इनहेरिटेंस और वो सब यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, तब यहाँ पे ये जो पब्लिक नहीं होगा तो क्या होगा, तभी हम प्रॉब्लम कर सकते हैं। उसको हम डीप में समझेंगे जब हम हमारे चैप्टर नंबर 3 या 4 में आएंगे, तब उसका नाम है इनहेरिटेंस, और उसको हम कैसे क्लास और जावा में कैसे उसको एक्सेस मॉडिफायर्स का यूज करते हैं, वो सब हम उसमें ज्यादा देखेंगे। पर अभी मैंने बेसिक आपको समझा दिया। ये पब्लिक अगेन एक्सेस मॉडिफायर है। स्टैटिक क्या करता है कि हाँ, उसके पहले हम देखते हैं कि ये जो पूरा है वो एक मेथड का नाम है। क्या है? मेथड है। अभी सी लैंग्वेज जैसा सीखा होगा उसमें आपने देखा होगी कि हम एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादा कोड, एक का एक कोड फिर से लिखना नहीं पड़े। जैसे कि हम मान लो कि जैसे मान लो कि हमें 2 नंबर का प्लस करना है, राइट, और वो भी यूजर जैसे बोले उसके हिसाब से हमें करना है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हमने लिख लिया, पर बहुत सारी बार करना है, राइट। तो अगर हम यहाँ पे फॉर लूप या ऐसा कुछ लिखेंगे तो देर हो जाएगा। पर अगर हम सी लैंग्वेज में यहाँ पे एक रेफरेंस दे देंगे, नीचे एक यहाँ पे फंक्शन लिख लेंगे कि यहाँ पे जैसे ही एक पैरामीटर आएगा, मान लो कि ए का पैरामीटर आया और बी का पैरामीटर, मतलब जो है वो इनपुट आया, और उसको क्या करेगा, यहाँ पे जो हमने फंक्शन लिखा है वो उसको सॉल्यूशन लाएगा, उसका सॉल्यूशन लाएगा, और बाद में उसको ऊपर भेजेगा जहां पे हमने उसको फंक्शन को कॉल किया है, राइट। तो अभी जावा में क्या है, फंक्शन नहीं होता, उसको मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेथड। तो एक एक टाइप का ये मेथड ही मान लो कि अभी आपको डिप में हम जैसे जैसे आगे जाएंगे वो समझेंगे, पर अभी के लिए आप समझ सकते हो कि ये एक प्रकार का क्या है, मेथड है। और इसको स्टैटिक क्यों लिखते हैं, कि स्टैटिक लिखने का कारण वो है कि कोई भी मेथड और फंक्शन को हमें बारी बारी से कॉल करवाना पड़ता है, राइट। पर ये तो मेन मेथड है, मतलब हमें हर बार इसको कॉल करवाना ही है। तब हम क्या करेंगे, स्टैटिक प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू मेथड टू सेल्फ कॉल, राइट। ये अपने आप से जैसे ही रन होगा, तो ये जो है स्टैटिक वर्ड उसको रन करने में, अपने आप से रन करने में फायदे रूप होगा, उसको रन करवाएगा अपने आप से, राइट। मतलब उसको क्या, इंस्टेंट वेरिएबल नहीं बनाना पड़ेगा, उसको कॉल नहीं करवाना पड़ेगा, राइट। अभी जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको वो समझ में आता जाएगा, राइट। अभी ये वॉइड है, वो एक टाइप का डेटा टाइप और पैरामीटर डेटा टाइप है। मतलब उसको रिटर्न टाइप बोल सकते हैं कि हमें रिटर्न क्या करवाना है। मतलब कोई भी फंक्शन है, मान लो कि a प्लस बी का सम, यहाँ पे मैंने एक फंक्शन लिख लिया एक्स्ट्रा। अभी हम जावा में मेथड बात करेंगे, फिर फंक्शन को मेथड बोलेंगे, ओके। दोनों सिमिलर टाइप है। 1 सेकेंड में मेरा चार्जर कनेक्ट कर लेता हूँ, 1 सेकेंड। ओके, नाउ इट इज फाइन। ओके, तो जब भी क्या होगा कि जब मैं मान लो कि a प्लस बी का सम करवा रहा हूँ यहाँ पे, और उसको स्टोर कौन से वेरिएबल में करवा रहा हूँ, सी सी वेरिएबल में, राइट। तो ए बी का सम करवा के अब जब हमें उसको भेजना है,
तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो रिटर्न टाइप है उसको वो क्या करेगा कि सी को सी वेरिएबल पर भेजेगा, राइट। 1 सेकेंड, आप सब लोग म्यूट कर दो। अगर आपको कोई क्वेरी है तो ही आप अनम्यूट करके बोल सकते हो, राइट। तो एक रिटर्न टाइप बोल सकते हैं इसको, बराबर। अभी सारा जो वर्ड है आपको थोड़ा हार्ड लगेगा, पर जैसे जैसे आप जहाँ पे आगे बढ़ोगे ये सब जो चीजें हैं, वो आपको बहुत मदद करने वाली, हेल्प करने वाली है। ये मेन मेथड का नाम है, मेन है। ये है आर्ग्यू स्ट्रिंग एंड आर्ग्यूमेंट जो है वो पैरामीटर्स है, हमें क्या लेना है। मेन स्ट्रिंग्स कवर करेगा और आर्ग्यूमेंट्स लेगा इसमें, राइट। ये जो है वो स्ट्रिंग और आर्ग्यूमेंट से बना है, ओके। मतलब पैरामीटर्स हमें क्या कलेक्ट करवाना है, क्या करना है, वो सब यहाँ पे आ जाएगा। ओके, नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ जावा कोड और जावा प्रोग्राम। ओके, सारे जो फंक्शंस है उसका नाम और वो सब आपको समझ में आ गया। अगर कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो। हम सीधा अब क्या करने वाले हैं कि एक दूसरे बेसिक प्रोग्राम में धीरे धीरे आगे बढ़ने का ट्राई कर रहे हैं। यस, एनी डाउट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट और स्टूडेंट्स? ओके, प्रीत अग्रवाल, ओके, यस, ध्रुवील, yeah, okay. Now we will move forward to the next programs. Okay, अभी कर देते हैं कि J1, राइट। आपको जो भी अच्छा लगे वो आप करना, पर J1 में यहाँ पे लिख लेता हूँ, राइट। ओके, और प्लीज डोंट मिस्टेक लाइक मी दैट name should be the J1 dot Java. Okay, without your .java file extension. The file will be saved as notepad or any simple text file, but we have to run this Java program, so we have to J1 dot we have to write J1 dot Java. Okay, J for Java programs. Okay, okay. Let's write public J1. Okay, we will write the name as per the uh, our files name. अभी क्या होगा, कभी कभी यहाँ पे रेड अंडरलाइन दिखाएगा वो सब, पर आपको उसका टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ये जो विजुअल स्टूडियो एडिटर है वो हमें बहुत फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। जैसे हमको विदाउट डिबगिंग वो कह देता है कि यहाँ पे कोई गलती कर लिया है, एरर है। पर अभी क्या होगा कि जैसे मैं यहाँ पे लिखने का ट्राई करूंगा तो तुरंत क्या आ जाएगा, रेड लाइन। पर उसको पता नहीं कि मैं पूरा एक प्रोग्राम लिखने जा रहा हूँ, इसीलिए आपको उसका टेंशन नहीं लेना है। अभी आपको सिंपल लिख लेना है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ओके, यहाँ पे स्ट्रिंग args arguments. Okay, and you can make here also brackets. So there are a lot of meanings of that we will understand in the further class. Okay, okay. Now the my task is to uh, wr- write a program to sum of two numbers. Okay, for sum of two numbers. Very basic, but you have to understand these things because this is the first steps are very basic, but they help us to build a proper program or to be a better coder. Okay, are you ready, guys? And in the Java, how you will write the comments? You will write simple slash, and you can write a one line comment in this type. Okay, so अभी हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे हम लिख लेंगे write a program to solve sum of two numbers. Okay,
तो उन दो नंबर का क्या करना है, हमें सम करना है। तो अब ऑब्वियस बात है कि जो नंबर है वो कौन से डेटा टाइप में आएगा, तो वो इंटीजर में आएगा, राइट। इंटीजर क्या होता है कि एक तरीके का डेटा टाइप। अभी हम देखेंगे डेटा टाइप अलग अलग कौन से होते हैं, जैसे इंटीजर है, लॉन्ग इंटीजर है, फ्लोट है, और दूसरे कई सारे डबल है, और स्ट्रिंग है, और कैरेक्टर है। वो सब हम देखेंगे धीरे धीरे से। पहले ये सिंपल एक कोड करेंगे, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट जो होते हैं उसको क्या करना होता है, कोड, एक दो कोड करना होता है। वो क्या होता है कि थियरी में कई बार हम बोर हो जाते हैं, सो हम एक दो सॉल्व करेंगे प्रोग्राम, उसके बाद फिर से हम क्या करना चाहेंगे कि एक दो फिर से थियरी लर्न करेंगे। ओके, सो दिस इज इंटीजर int a equal to something like 10. Okay, then we have to write another integer b equal to 20 and semicolon, right? And we have to also initialize, or we have to write integer c on which we are storing our answer in this third element. Okay, done. And then we have to print this. Okay, 1 second. ए प्लस बी को हमने क्या कह रहा है कि सी में स्टोर कर दिया है कि ए का वैल्यू जो है यहाँ, वहां यहाँ से लेगा इंटीजर ए से, बी का वैल्यू उसके ऊपर की लाइन जो इंटीजर बी में हमने स्टोर करवाया है 20, द एक्सपेक्टेड आउटपुट इज 30। नाउ वी विल राइट द सिस्टम डॉट द आंसर सम ऑफ ए एंड बी इज। अभी हमें क्या करना है कि जावा में अगर आपको वेरिएबल को प्रिंट करवाना है तो क्या करना है कि यहाँ पे सी लिखोगे तो वो स्ट्रिंग में आ जाएगा। जैसे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ऐसा मत सोचना कि सर ने गलती कर दिया है। तो मैं आपको एक दिखा रहा हूँ कि अगर आप सी को इसके अंदर ही लिख लोगे तो क्या होगा कि वो, एक सेकंड, यहाँ पे हमने सेमीकोलन नहीं करा है तो कर देंगे। उसके बाद जब आप रन करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको लिख के आ जाएगा सम ऑफ ए एंड बी इज सी। पर हमें तो क्या करना था कि भाई हमें तो सी का वैल्यू प्रिंट करवाना है। तो क्या करेंगे, उसका एक साइन प्लस, एंड देन वी हैव टू राइट सिंपली सी इंटीजर। And now if we try to run this code, and then we are getting our answer sum of A and B is 30. Okay, students. So very simple program to solve a sum of two numbers. After that, थोड़े फ्यू सेशंस के बाद हमें पता चल जाएगा कि कैसे इनपुट में यूजर से वैल्यू इनपुट कराए, मतलब वैल्यू हमें इनपुट करवाना है और उसके बाद में उसका हम आउटपुट देंगे। ये तो वैल्यू क्या है कि हमने पहले ही कोड में ही दे दिया कि ए का वैल्यू 10 है, बी का 20। पर अभी हम नेक्स्ट फ्यू क्लासेस में क्या करेंगे कि जो ए का वैल्यू है वो सिस्टम जब कोड रन करेगा तब इनपुट में लेगा। मतलब अभी जैसे रन होगा उसके बाद में मैं लिखूंगा 10, यस, बी का वैल्यू पूछेगा तो उसमें मैं लिखूंगा 20, एंड देन वो सॉल्व करके देगा कि सम ऑफ ए एंड बी इज 30। ओके, वो भी हम सीख लेंगे धीरे धीरे से। ओके, now similarly you can write this for also divide rule, or something like multiplication, or something like uh, subtract, or something other equations, right? The other one, a good element is the module. Are you guys aware of this function, this operator modulo? What this is operator does? Yes, anybody?
yes, Sarma, Bhavna, it gives remainder. Yes, very good, gives us remainder. Okay, yes. Can anyone want to explain this modular functionality? Should I unmute them? If you want to try this, please be free to speak and explain. Okay, let's see. Many of other students are not aware of this percentage sign, modulo sign. Let's change this value to and 20 and 10. Okay, a has okay, Dhruv will also give a very wonderful example. If we do 10 per modulo 4, so it gives us 2. Okay, cause we will check. Okay, देखते हैं क्या होता है कि अभी उसका क्या आंसर आता है। अभी देखो 20 मॉड्यूल सिंपली क्या करता है, पहले तो उसको डिवाइड करेगा, जो रिमाइंडर रहेगा उसका आंसर देगा, राइट। तो अभी देखते हैं कि 20 डिवाइड बाई 10 है तो 2 से हो जाएगा, तो क्या वो जीरो देता है? उसका हमें आंसर देखना है, देखो जीरो। और अगर मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि 4 नहीं 3 लिख देता हूँ, तो अभी देखो कि 7 इंटू नहीं, हाँ, मीन्स देर आर टू, रिमाइंडर इज 2, राइट, 20/3। लेट्स चेक। यस, तो देखो कि वो क्या दे रहा है कि आंसर में 2 लिख रहा है, राइट। तो मॉड्यूल एक गजब का ऑपरेटर है, मीन्स आप उसका यूज करके बहुत सारे फंक्शनैलिटीज, और मेनली यूज्ड इन if loops, when we have to check for if uh, any number is even or not, then we simply write if, and the condition is that the number modulo 2 equal to 0 or not. If the number is 0, sorry, modulo gives 0 when we divide any number 2, then this number is even. And they give any number means 1, so this will as known as odd number. Okay, अभी देखेंगे बाद में उसको कैसे करना है, वो सब आगे आगे हम देखते जाएंगे। पर अभी तक तो आपको वही करना है, बराबर। अभी आज के क्लास में जो हमने एक प्रोग्राम किया और बाकी सारा बहुत सारा थियरी देखा है, आज हम यहाँ तक रखते हैं। अभी जो 90% थियरी है वो खत्म हो जो गया है। अभी मेरे को क्या, आपको सिर्फ एक रह गया है, वो फीचर्स ऑफ जावा आपको एक्सप्लेन करना है। दूसरा एक है कि ऑपरेटर्स पहले हम नेक्स्ट क्लास में पहले देखेंगे, क्योंकि क्या होता है कि जब any doubts are coming, they take some time, right? So अभी आज की क्लास में क्या हुआ कि एक दो डाउट्स आए, तो उसको हमने सॉल्व करने में, मीन्स उसको एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम चला गया। तो आज जो मुझे आपको ऑपरेटर सिखाना था, वो उसका टाइम अभी रहा नहीं है। पर क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम पहले ही ऑपरेटर्स देख लेंगे, फीचर्स ऑफ जावा। जैसे ही बीच में कोई टाइम मिलेगा फ्रेश होने के लिए, तो हम देखेंगे, बराबर। तो नेक्स्ट टाइम ऑपरेटर देखेंगे, और तुरंत उसके बाद हम क्या करेंगे, हम लूप, जो मेन प्रोग्रामिंग का वेरी बेसिक फंडामेंटल्स है, जैसे लूप, फॉर लूप है, व्हाइल लूप है, डू व्हाइल लूप है, और वो सब हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। और एक पर्टिकुलर प्रोग्रामर बन जाएंगे, और उसके बाद में हम प्रोग्राम्स करने के लिए रेडी हो जाएंगे, और बहुत सारे प्रोग्राम भी हम करेंगे। ओके, आर यू रेडी गाइस उसके लिए? Any doubt in today's session or something? Yes. Any doubt in today's session or something? Okay, Suyog says no. Okay, very good. Preet Agrawal, no. Okay. Okay. So we can we move to the our tasks part? 1 second. So what is today's task?
So first, I want some interaction with in this class because I need also your थॉट्स कि आप क्या सोच रहे हो, आपको कितना समझ में आ रहा है। तो अभी क्या करेंगे, एक मैं आपको कंसेप्ट देता हूँ जो मैंने थोड़ा बेसिकली आपको सिखाया है, वो है जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन। ओके, तो आपको क्या करना है कि जेवीएम का नोट्स आपको गूगल में से आप देख सकते हो और कहीं से भी, और वो कंसेप्ट आपको क्लास में मैं आपको उसका 2-3 मिनट्स आपको समझाना है, किसी भी एक स्टूडेंट को बोलूंगा, राइट। तो आपको वो देख के आना है, राइट। तो क्या उससे क्या होगा कि हमारे क्लास में थोड़ा आपका भी इंटरेक्शन बढ़ेगा। हम एक साथ एक जो उसमें क्वेरी आएगा उसको सॉल्व करेंगे और थोड़ा इंटरेक्टिव होगा। तो क्या होगा उससे कि हमें भी पढ़ाई करने में, मतलब इसमें स्पीड में हम आगे बढ़ सकते हैं। ओके, तो जेवीएम पे आपको नोट्स बना के आना है, थोड़े पॉइंट्स की जेवीएम क्या करता है, जैसे उसको कैसे रन करते हैं, क्यों वो जेवीएम जावा को इंडिपेंडेंट बनाता है प्लेटफॉर्म से, राइट। वो सब आपको नेक्स्ट क्लास में मुझे बताना है। ओके, देन एंड द नेक्स्ट इज कि आपको एक प्रोग्राम बनाना है, वेरी सिंपल प्रोग्राम की जिसमें सम आ जाए, सब्सट्रैक्शन आ जाए, एक ही प्रोग्राम में आपको बनाना है। ओके, सब्सट्रैक्शन आ जाए मान लो कि, और मल्टीप्लिकेशन आ जाए, और डिवीजन भी आ जाए उसमें, एंड मॉड्यूलो, राइट। सारा मीन्स जो हमने अभी देखा ऑपरेटर, ये 5 ऑपरेटर, वो सभी का यूज करके एक ही प्रोग्राम में आपको बनाना है और उसको आपको यूज करना है, राइट। उसको यूज करना है एक ही प्रोग्राम में। जैसे आपको एक रैंडम वैल्यू में दे देता हूँ कि उसका आंसर आपको लिख के आना है नेक्स्ट टाइम। ओके, और यू कैन ऑल्सो डिस्कस इन द आवर व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप, राइट। A is equal to 5 6 4 3 2, right, and the B will be our something like 3 3 3. Okay, so this will and all the numbers are in only integer because today's class अभी तक हमने सिर्फ इंटीजर डेटा टाइप ही सीखा है। तो हमें क्या करना है, सब ये जो प्रॉब्लम पूरा करना है उसको डेटा टाइप इंटीजर में करना है, क्योंकि उसमें क्या होगा कि डिवीजन में आपको समझ में आएगा कि इंटीजर डेटा टाइप सभी प्रोग्राम में क्यों नहीं यूज होता, हमें कभी कभी फ्लोट यूज करना पड़ेगा, वो सब हम देखेंगे। क्योंकि आपको पता चलेगा लाइव प्रैक्टिकल, आप समझ में आएगा कि सिर्फ इंटीजर डेटा टाइप से पूरा प्रोग्राम क्यों नहीं लिखना है, कभी कभी आपको फ्लोट यूज करना है, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, और लॉन्ग डेटा, लॉन्ग इंटीजर, वो सब आपको क्यों यूज करना है, वो सब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, डन, क्लियर गाइस। टुडेस टास्क इज only 2 because we are starting very slowly and steadily, right? बिकॉज अभी क्या करना है, अभी धीरे धीरे से हम कोडिंग सेक्शन में जावा में आगे बढ़ेंगे और उसके बाद में अभी धीरे धीरे से लेवल हाई होता जाएगा। तो आपको क्या करना है कि जो मैंने सिखाया है उसका बेसिक्स आपको क्लियर होना चाहिए। तो अभी क्लास आज का यहाँ तक हम रखते हैं। ओके माय फ्रेंड्स, एनी डाउट इन टास्क और एनी डाउट इन टूडेज सेशन? ऑल्सो आप सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप में वो भी लिख सकते हो कि आपको ये क्लास कैसा लगता है, तो कैसा लगता है, क्या स्पीड और वो सब चाहिए, आप मुझे ऐसे मैसेज भी कर सकते हो। तो क्या हमें भी थोड़ा कॉन्फिडेंस मिले, साथ में हमें थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, तो हम भी बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स लाने का ट्राई कर रहे हैं। जैसे ये कोर्स के बाद हम ला रहे हैं कोर्स, core Java, Python programming, and also uh, the good thing is in our team there are many people are joining day by day to help students, right? अभी तक 2 प्रोफेसर्स ज्वाइन हो चुके हैं और many students are happy to teach like me to the students for free or some nominal cost, right? एंड अभी हमने तो वही डिसाइड किया है कि सिर्फ सब आपको
जितना फ्री हो सके उसमें आपको सिखाना है, राइट। तो आपका सपोर्ट थोड़ा अगर हमें मिलेगा तो हमें भी थोड़ा कॉन्फिडेंस एंड सपोर्ट जैसा फील होगा, एंड हम भी उसमें ज्यादा से ज्यादा हम उसमें एक्सप्लोर करने का और आपको ही हेल्प करने का ट्राई कर सकते हैं। ओके, साथ में मैंने यूट्यूब चैनल भी क्रिएट करके यस्टरडे का जो क्लास था उसको अपलोड कर दिया है। आप उसमें जाके देख सकते हैं अगर आप किसी को रह गया है देखने का, राइट। उसको प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब भी कर दो। ओके, डन। अगर आपका सपोर्ट मिलेगा थोड़ा तो हमें भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा और ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटी करने के लिए हम रेडी हो गए। ओके, तो थैंक यू सो मच। यहाँ तक रखते हैं आज का क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक बाय टू एवरीवन। बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।